Friends, let's start with the topic that is equation of motion. First, let us see what is this equation of motion. Equation of motion basically कुछ sets of equation हैं that gives us the relationship between the various parameters that describe the motion. तो ये कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? The parameters are the velocity, the distance, the time and the acceleration. तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन चारों पैरामीटर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती है. Now let's move on to the topic that there are 3 equations for motions. और ये जो 3 equations हैं ये उन bodies के लिए define होता है that travel with a uniform acceleration. So the first equation of motion is given by v is equals to u plus at. The second equation of motion is given by s is equals to ut plus half at square. The third equation of motion is v square minus u square is equals to 2as. Let us first understand the variables used in the equation. That is, v stands for the final velocity of the object. The u stands for the initial velocity of the object. The s stands for the distance traveled by the object. Similarly, t stands for the time taken by the object and a stands for the uniform acceleration. So we will study these equations one by one. Now let us first start with the derivation of first equation of motion. From the definition of acceleration, we have seen that acceleration is given by the change in velocity upon the time taken. The change in velocity is the final velocity minus the initial velocity upon the time taken. The final velocity, as we have seen, is represented by v. The initial velocity is represented by u and time is represented by t. The acceleration is represented by a. So the formula completes as a is equals to v minus u upon t. On solving the equation and rearranging the equation in such a way such that v becomes the subject of the formula. And finally, you will get the first equation of motion. तो ये जो आपकी equation है, this equation is used to find out the velocity v which is acquired by the body in time t moving with an acceleration small a. Now let's start with the second equation of motion. S is equals to ut plus half at square. अब इस equation को हम prove कैसे करेंगे? So now let's start with that. We have studied that the average velocity is given by the initial velocity plus final velocity upon 2. Initial velocity को हम u से represent करते हैं और final velocity को हम v से represent करते हैं. तो average velocity का formula क्या हो जाएगा? u plus v upon 2. इस equation को equation number 1 दे दीजिए. Now the distance is given by the average velocity into the time taken by the object. तो अब आपको क्या करना है कि एवरेज वेलोसिटी को इक्वेशन नंबर 1 से उठाइए और इस डिस्टेंस के इक्वेशन में पुट कर दीजिए. तो डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और एवरेज वेलोसिटी की जगह हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया, दैट इज u प्लस v अपॉन 2. टाइम की जगह हम इसको t से रिप्रेजेंट करेंगे. Using the first equation of motion, that is v is equals to u plus at. यहाँ से v, that is velocity, final velocity की वैल्यू आप उठाइए और इक्वेशन नंबर 2 में v की जगह पर पुट कर दीजिए. जब आप v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी. अब आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करने पर u प्लस u दोनों को ऐड कर दीजिए. सो यू विल गेट 2u प्लस at और पूरी इक्वेशन t से मल्टीप्लाइड है अपॉन 2. नाउ यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट. ब्रैकेट ओपन करने पर t दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा. तो ये हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2. नाउ जो डिनोमिनेटर है हमारा 2, उसको दोनों टर्म्स में डिवाइड कर लीजिए. तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2. 2 और 2 फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर दे देगा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t.
Let's start with the third equation of motion, that is v square minus u square is equals to 2as. अब इसका प्रूफ हम देखते हैं. ये इक्वेशन को ऑब्टेन करने का तरीका है कि दो इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट टू इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनमें से अगर हम t को एलिमिनेट कर दें तो हमारी इक्वेशन बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक, अब ये कैसे होगा? नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at. इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करिए एंड मेक t द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. तो t आपका क्या आ रहा है? v माइनस u अपॉन a. पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. जो t की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की है, वो वैल्यू उठा करके आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है. तो इस इक्वेशन में t की जगह अगर आप v माइनस u अपॉन a पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन मॉडिफाई होकर के कुछ इस टाइप की हो जाएगी. अब नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है कि आपको जितने भी ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर देना है. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में आप देखिए u से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को तो ये जाएगा uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a. सेकेंड टर्म पर आइए तो ये जाएगा प्लस 1/2a v माइनस u होल स्क्वायर. यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे a माइनस b होल स्क्वायर का. इसका फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो रेफरिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई ऑन v माइनस u होल स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला ये इक्वेशन ओपन होकर के ब्रैकेट क्या हो जाएगी? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a स्क्वायर. अब आप देखेंगे कि एक्सीलरेशन सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर में भी है और एक्सीलरेशन स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो एक टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट आपको क्या करना है कि दोनों टर्म के बीच में एलसीएम ले लेना है. तो एलसीएम आपका यहाँ a है, यहाँ पर 2a है, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 2 ऑफ a. ठीक, अब 2 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv. 2uv और माइनस 2uv आपस में कैंसिल हो जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विद दिस साइड 2as. 2a को s के साथ भेज दीजिए तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. सो दिस गिव्स यू द रिलेशन